Good morning, everyone. How are you all? Okay, now it's time to start our explanation of this lesson, which is the little red hen. Okay, you must have completed your dictation words and new words. Completed? Yes. So now we will be understanding this story. Okay, so let's start. Take out page number 22. Yes, page number 22. Let's start. A little red hen. A little red hen lived on a farm. There was one little red hen which lived on a farm. मतलब एक little red color की hen थी जो एक farm पे रहती थी. Along with the hen, a dog, a cat and a duck also lived on the farm. जिस farm पे वो रह रही थी, along with the hen, there was one dog, there was one cat and there was one duck who was also living with the hen on the farm. The little red hen worked hard all day. थी वो दिन भर काम करती थी. दिन भर सारा काम ये लिटिल रेड hen करती थी. So the dog, cat and the duck were lazy. They did not do any work. तो जो फार्म का काम था वो सारा काम hen करती थी. और ये dog, cat and the duck were very lazy. They used to not do any work. They used to just sit and they used to sleep. That's why they were very lazy. Who was working very hard? The red hen was working very hard. And who was lazy? The cat, the duck and the dog. So the little red hen cleaned, cooked and washed all day. मतलब जो ये little red hen थी वो सारा काम करती थी. वो cooking करती थी, washing करती थी, cleaning करती थी. ये सारा काम कौन करता था? Little red hen. और बाकी के तीनों क्या करते थे? Dog, cat and duck. They used to just sit and they used to sleep all day. Yes. One day the little red hen said, I want to bake a cake. So she said, Dear dog, will you assist me? The dog said, I am tired. I cannot help you. Then one day what happened? That red hen thought कि let's bake a cake. तो वो red जो hen थी वो red hen को लगा कि चलो आज हम केक बनाते हैं. बट केक बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है. सो उसने सोचा कि चलो अपन डॉग, कैट और जो डक है उनकी हेल्प लेके केक बेक करेंगे. सो वो सबसे पहले किसके पास गई? शी वेंट टू अ डॉग. शी वेंट टू द डॉग एंड शी सेड, डियर डॉग, विल यू असिस्ट मी? नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ असिस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असिस्ट? करेक्ट. द मीनिंग ऑफ द असिस्ट dear dog, will you assist me? The dog said, no, I am tired and I cannot help you. Then what that red hen said? That no, I am very tired and I cannot help you. मैं बहुत थका हुआ हूँ. Tired means I am very tired. मैं बहुत थका हुआ हूँ और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता. So dog said that I am very tired and I cannot help you. The hen then requested the cat. अब डॉग ने तो मना कर दिया. फिर डॉग के बाद अब वो किसके पास गई? रेड हैन कैट के पास गई. द रेड हैन देन रिक्वेस्टेड द कैट. देन रेड हैन ने किसको रिक्वेस्ट किया? कैट को. फ्रेंड कैट, विल यू हेल्प मी टू बेक अ केक? उसने फ्रेंड कैट से पूछा, डियर कैट, माय फ्रेंड कैट, विल यू हेल्प मी टू बेक द केक? क्या तुम मेरी मदद करोगी क्या केक बेक करने में? द कैट सेड, इट्स माई टाइम टू स्लीप. आई एम ऑफ टू स्लीप. तो कैट ने क्या कहा? This is my time to sleep and I am going to sleep now. I will be sleeping. वो कैट ने कहा कि नहीं, मेरा तो ये सोने का टाइम है, मैं नहीं आऊँगी तुम्हें हेल्प करने, मुझे तो सोना है. सो कैट ने भी मना कर दिया. डॉग ने मना कर दिया, कैट ने मना कर दिया. Now who is remaining? Yes, the duck is remaining. Now the hen went to find the duck by the pond. अब डक तो पॉन्ड में रहता है. तो ये hen पॉन्ड के पास गई एंड वहाँ पे उसने डक को देखा. She asked the duck for help. And what the red hen did? She asked the duck to help her to bake the cake. The duck said, but it is my time to swim. How can I help?
डक ने कहा बट दिस इज माई टाइम टू स्विम, मुझे स्विमिंग करनी है तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगा। फिर रेड हैन थी वो नाराज हो गई, डिसअपॉइंट हो गई कि उसकी हेल्प कोई नहीं कर रहा है, ना कैट कर रही है, ना डॉग कर रहा है और ना ही डक उसकी हेल्प कर रहा है। सो वो डिसअपॉइंट हो गई। डिसअपॉइंटेड द लिटिल रेड हैन वॉक बैक होम, शी वॉज वेरी सैड, और वो बहुत नाराज थी, वो बहुत सैड थी। देन शी थॉट आई डू नॉट नीड हेल्प, आई कैन मेक माई केक विदाउट हेल्प। फिर उसने सोचा मुझे तो किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी केक बना सकती हूँ। इवन आई कैन बेक माई केक बाय माई सेल्फ। सो फिर उसने क्या सोचा कि मैं खुद केक बनाऊंगी और खुद खाऊंगी, मतलब शी वॉन्टेड टू बेक द केक बाय हर सेल्फ एंड शी वॉन्टेड टू एन्जॉय इट अलोन। सो सून शी गॉट सम एग्स, फ्लावर, शुगर एंड बटर एंड मेड अ फाइन केक। फिर उसने क्या क्या लाया, केक बनाने के लिए क्या क्या लगता है, मम्मी बनाती है ना घर पे केक, हाँ। सो उसने एग्स लाए, फ्लावर मीन्स आटा, आटा होता है ना, मैदा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आटा बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। फ्लावर, शुगर एंड बटर एंड मेड अ फाइन केक, इन सारे आइटम्स को वो लेकर आई और उससे उसने बहुत टेस्टी और अच्छा केक बनाया। हैप्पीली शी लेट द टेबल एंड प्लेस द केक, और उसने जो इतना सुंदर केक बनाया था, दैट वाज सो यमी एंड सो डिलिशियस, यू कैन सी इन द पिक्चर नो, यस। सो शी हैप्पीली लेट द टेबल, हैप्पीली लेट द टेबल मतलब वो जो केक था उसने टेबल पर प्लेस किया एंड शी enjoyed that cake, she was going to enjoy the cake. And when she began to eat the cake, the dog came and said, let me help you to eat the cake. और जैसे ही वो टेबल पर बैठी खाने के लिए, when she just began to eat the cake, to eat the cake, डॉग ने क्या कहा, let me help, मतलब मुझे मदद करने दो, किस चीज़ में, खाने में। तो क्या हैन ने मदद करनी चाहिए उसको, क्या उसको केक देना चाहिए, नहीं देना चाहिए ना, यस। सो डॉग ने कहा लेट मी हेल्प यू ईट द केक, मतलब मैं तुम्हारी मदद करता हूँ केक खाने में। सून द कैट जॉइन इन एंड सेड आई कैन हेल्प यू टू, और फिर तुरंत डॉग के बाद कौन आया, कैट आ गई। कैट ने भी कहा इवन आई कैन हेल्प यू टू ईट द केक, सब। एंड उसके बाद क्वैक 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 द डक एंटर्ड द रूम एंड सेड आई कैन हेल्प यू ईट इट टू, और उसके बाद डक भी उस रूम में आ गया केक खाने के लिए। एक एक करके सारे लोग केक खाने के लिए आ गए, बट हेल्प करने कोई आया नहीं आया, और केक खाने के लिए सब आ गए। द लिटिल रेड हैन लुक्ड एट ऑल ऑफ देम एंड सेड आई मेड द केक विदाउट योर हेल्प, सो आई विल ईट इट विदाउट योर हेल्प। अब हैन ने क्या किया, व्हाट हैन डिड, हैन सेड टू ऑल थ्री ऑफ देम दैट आई हैव मेड दिस केक विदाउट योर हेल्प, मतलब मैंने ये जो केक है वो किसी के भी हेल्प के बिना बनाया है, ये मुझे इस केक बनाने में तुम तीनों नहीं आए थे हेल्प करने के लिए, इसीलिए अभी खाने का भी हेल्प मुझे मत करो, अभी खाने का काम भी मैं अकेले करूँगी। What she said, I made the cake without your help, and even I will eat it without your help. मतलब अगर आप हेल्प केक बेक करने के लिए नहीं आए हो तो तुम खाने कैसे आ गए। सो हैन ने कहा कि नहीं, ये केक तो मैं अकेले ही खाऊंगी। द लिटिल हैन हैप्पीली एट द केक, और लिटिल हैन ने क्या किया, खुशी खुशी अपना जो केक था वो सारा केक फिनिश किया। द डॉग हम क्या हो जाते हैं, हम हंग्री हो जाते हैं ना, यस। उसी तरह ये तीनों भी हंग्री हो गए थे हैन को केक खाते हुए देखते हुए, और फिर उनको भी इच्छा होने लगी केक खाने की। सो द कैट, द डॉग एंड द डक हंग्रीली वॉच्ड हर ईटिंग द केक। यस, दैट्स द एंड ऑफ द लेसन। इससे क्या हमें समझ में आया, दैट फॉर एवरीथिंग यू नीड टू वर्क हार्ड। अगर आपको आपके लाइफ में कोई भी चीज़ चाहिए, अच्छी चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, तो आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इफ़ यू विल वर्क हार्ड देन यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स, आपको उसके रिजल्ट्स भी
अच्छे मिलेंगे। मतलब अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको पढ़ाई भी अच्छी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा, तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मेहनत करोगे तो ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे ना। यस, सो सेम अप्लाइज हियर ऑल्सो, दैट इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट द good results. Okay, understood the lesson? Yes. Bye everyone, take care.